Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'm going to be telling you about what are the most repeated topics which have been asked in the CUET psychology. So, how I came up with this solution is basically I checked last year's 5-6 years paper, then मैंने उनको tally किया, उनकी frequencies बनाई, and that's how I came up that what are the most frequent topics which are definitely be going to asked in the upcoming examinations based on the trends of last 5-6 years. So I know this thing is a very you can say contradictory thing to what I say, that there is nothing as such pattern when you say कि सर ये तरह के questions बार बार आ रहे हैं. But when you see the overall 5-6 years paper, you will have a some idea कि okay, these are the topics which I cannot skip at all. राइट. तो आज के इस वीडियो में यू विल बी नोइंग ऑल दोस टॉपिक्स जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो. इट मीन्स यू हैव टू स्टडी इवेंचुअली एवरीथिंग, बट दीज आर द टॉपिक्स which you cannot skip at all. Alright, so if you are preparing your CUET preparation for 2026, or you are preparing for the GATE examination, or you are preparing for any master's level exam for psychology, you can join my this Mahayotha batch. This batch is live right now. This batch is going to be complete within 1 month, and after that I'll be having a new foundation batch जिसकी details already आपको मिल गई होंगी हमारे videos के through, and you can join that batch also. That is a foundation batch also, and that will be starting 1 month after. But this batch is live right now, and this is the one-stop batch. If you buy this batch, you will be getting access to all over my coming batches. So technically that's why the reason is the name is Mahayotha batch. There's a one-time payment batch. You will be having access to my live classes, which is going right now with my current batch. 1 month after, my new batch will be starting. That is a foundation batch. उसका भी एक्सेस आपको इसी में ही दिया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. एंड फरवरी मार्च में मेरा एक प्रॉपर 1 मंथ का MCQ Mooster batch series launch होता है, in which we make you solve 3000 MCQs in the live class. And since if you know me, you have seen my videos, you know how much I keep saying about the importance of the MCQs. So ये सारी चीजें along with notes, PDFs, PPTs, mock test, question bank, and all the MCQ banks, which is roughly 10 to 12,000 MCQs, सब कुछ आपको दिया जाएगा इस बैच के अंदर, and you will be personally connected to me. So ऐसा नहीं है कि if you want to ask some doubt आपको coordinator से या batch moderator से permission लेनी पड़ेगी, you have to fill a Google form. Nothing like that. You will be having my personal number. You can directly message me what are your doubts related to preparation. So आपको एक proper hand holding strategy और guidance मिलता है Study Capital के 10 batch में. Alright. So what are the topics which are very much important and they get repeated so often that you cannot skip those topics? Firstly, we'll start with the research and statistics. So research designs. What are the types of research? Quantitative, qualitative designs. Then there are experimental designs, quasi-experimental designs, right? Post facto designs. Then there is the qualitative design such as like case studies method, questionnaires. Then you will be having focus group discussions, all those things. There's the research design, very important. बहुत बार questions repeat हुए इससे. Then there is sampling. You need to understand what is the meaning of sampling, then what are the types of sampling, such as probability sampling and non-probability sampling. Then what are its type also, and कब हम किस में use करते हैं, ठीक है. Then measures of central tendency, as usual, evergreen topic, mean, median, mode, ये सारी चीज़ आपको निकालनी है. And dispersion also, that is your standard deviation, variance, quartile deviation, interquartile range, ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखनी है. Then correlation से काफ़ी questions आते हैं theory basis पे. So for correlation, you have to understand only this thing, that what is the meaning of correlation, what is the range of correlation, that is between 0 to 1, and minus and plus will say the direction of the relationship. Correlation में सबसे important चीज़ यही है कि they don't explain causation. Causation नहीं होता है correlation. They are simply the relationship between two variables. Types of correlation आपको पढ़ने हैं. In which type of data type you will be using what type of correlation. इस तरह के बहुत सारे questions पूछे जा चुके हैं. Then t-test की आपको basic definition पता होनी चाहिए. Type of t-test such as independent t-test, dependent t-test, paired sample t-test, single sample t-test, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. Then ANOVA के basic features के बारे में आपको पता चलना चाहिए. chi square की philosophy क्या होती है,
if there is any data which is on the frequency scale, why do we use chi-square as the most authentic sense? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. रिलायबिलिटी में क्या क्या टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी के, वैलिडिटी में क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट. और भी नॉर्म्स के बारे में क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं. सो ये टॉपिक्स तो आप स्किप ही नहीं कर सकते हो, ठीक है. यू कैन ऐड सम मोर टॉपिक्स सच एज एनपीसी, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ऑलराइट. Then for the experimental and cognitive psychology, these chapters are very much important, such as memory. So memory में you will be having storage part, then encoding part and retrieval part. So what are the theories of encoding? What are the theories of storage? What are the theories of retrieval? Forgetting का concept क्या होता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती हैं. फिर cognitive psychology में आपका attention part, theories of attention such as अर्ली फिल्टर सिलेक्शन, लेट फिल्टर सिलेक्शन, राइट, ब्रॉडबैंड की थ्योरी, ट्रेजमैन की थ्योरी, ड्यूशन ड्यूश की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है. टाइप्स ऑफ अटेंशन. देन इसके बाद परसेप्शन में देर आर 7-8 थ्योरीज ऑफ परसेप्शन, राइट. टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. व्हाट आर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, व्हाट आर परसेप्चुअल डिफरेंस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. देन इन द लर्निंग, I don't have to even say this. Classical conditioning, operant conditioning, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये चीज़ें. Alright, so classical conditioning, operant conditioning बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बेसिकली वही क्या क्या मेथड्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, जैसे यू कैन से देयर आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस, राइट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ये सारी चीज़ें आपको इस पर कवर करनी है. Then moving on with the biological basis of behavior, which is also known as physiological psychology. इसमें आपको न्यूरॉन बहुत अच्छे से पढ़ा है. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, ठीक है. न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं सच एज एक्सॉन, टेल बॉडी, नोड्स ऑफ रेहनवीर, राइट. ये सारी चीज़ों का क्या फंक्शन होता है, ये सब आपको पढ़ना है. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम पंप, कैसे न्यूरॉन ट्रैवल करता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन ब्रेन में यू हैव टू स्टडी अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल पर्पस. यू डोंट हैव टू स्टडी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मेडिकल पर्पस, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी वो चीज़ें ऑब्वियसली, राइट. सो इन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी डोंट नो द लिमिट, बट यू कैन नो द लिमिट. देयर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट, you go through all the PYQs, not just CUET. सिर्फ CUET नहीं देखना है आपको. You have to go through all the PYQs for the DU, PHU, Pondicherry, Hyderabad University, then AMU, Aligarh Muslim University, Jamia, all these universities के आपके PYQs go through करना है, and then only you can understand कि किस trends में question पूछे जा रहे हैं. Also in my batches, I tell all these things. My batch is been curated on the basis of this thing only, right? कि आप किस तरह से चीजों को करेक्ट वे में पढ़ सकते हो. सो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में चीजों को पढ़ना. यू डोंट हैव टू डीप डाउन डीप, कि आपको समझ ही ना है कि आप कहाँ जा रहे हो फिर, राइट. स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शंस हो गया. एंडोक्राइन सिस्टम में इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो विद ऑल द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस and what is the impact, what is the problem they will cause if their quantity is increased or decreased. These like the most high frequency questions, बहुत बार पूछे गए इनसे questions. Then with the developmental psychology, stages आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, which is basically prenatal stage development, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. Then longitudinal versus cross sectional designs, बहुत ज़्यादा important है. इसी में एक important topic है आपका cohort design, right. इसी में एक important topic आता है आपका कोहॉर्ट इफेक्ट. ये कोहॉर्ट इफेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है. ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियल डिजाइंस. देन पियाजे की थ्योरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट. दोस 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा जरूरी है. वाइगॉस्की डेवलपमेंट पर्पस, लैंग्वेज में इनका जो रोल है वो थ्योरी पढ़नी है आपको, लैंग्वेज डेवलपमेंट की. अटैचमेंट थ्योरीज, दैट इज फॉर द एम्सवर्थ, बॉलबे, देन यू हैव बाउमरेंड, इन सब की थ्योरीज पढ़नी है. सो दीज आर वेरी हाई रिवॉर्डिंग टॉपिक्स. आई एम नॉट सेइंग कि इसके अलावा क्वेश्चंस आते नहीं हैं. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन,
तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं. You have to study everything, and if you are in the batch, you will eventually study everything. बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड यू वांट टू सॉर्ट डाउन थिंग्स, नैरो करना है आपको चीज़ों को कि ओके फर्स्ट आई नीड टू क्लियर माई माइंड एंड स्टडी ओनली दोज थिंग्स जिनकी रिवॉर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा हो. दीज आर द टॉपिक्स. इन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, हर चैप्टर में. क्लियर? देन फॉर द एबनॉर्मल एंड साइकोपैथोलॉजी यू विल बी हैविंग द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसऑर्डर्स. क्या क्या मेजर डिसऑर्डर्स हैं, देयर सिम्टम्स. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे क्राइटेरिया आपको नहीं पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी क्राइटेरिया. आपको क्राइटेरिया नहीं पढ़ना है. क्राइटेरिया से क्वेश्चंस नहीं आते. इट इज वेरी रेयर. देयर आर सम क्वेश्चंस जिनसे क्राइटेरिया बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. अदरवाइज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज द सिम्टम. केवल आपको सिम्टम्स याद करने हैं. अगेन माइंड माय वर्ड्स, सिर्फ सिम्टम्स आपको याद करने हैं. एवरी डिसऑर्डर विल बी हैविंग सम की सिम्टम्स, ठीक है. अदर देन दिस डीएसएम जो है और आईसीडी है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं. डीएसएम का मतलब डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. आईसीडी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस. डीएसएम कौन पब्लिश करता है? APA, दैट इज अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, नॉट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. इट इज अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. आईसीडी कौन पब्लिश करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इनके क्या फीचर्स होते हैं? DSM-4 की मल्टी एक्सेस क्या थी? एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4, एक्सेस 5. DSM-5 में क्या चेंजेस आए? मल्टी एक्सियल क्यों हटा दिया गया? ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर. देन फॉर द पर्सनालिटी थ्योरीज एंड मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट, बेसिकली यू हैव टू स्टडी ट्रेट वर्सेस टाइप अप्रोचेस. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एल्बर्ट से, केटल से, आइजेंक से, बिग 5. ऑलराइट. अदर देन दिस आपको फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है पर्सनालिटी की, दैट इज टॉकिंग अबाउट ईड ईगो, सुपर ईगो. देन देयर इज कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड द सेल्स डेवलपमेंट थ्योरी. इसके अलावा आपको कार्ल यूंग की थ्योरी पढ़नी है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट थ्योरी. इसके ऊपर एक MBTI टेस्ट बेस्ड है. ऑलवेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच आर द गिफ्टेड क्वेश्चंस व्हिच आई कीप टेलिंग इन माय बैचेस. सो वन सच क्वेश्चन इज MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे आता है कि MBTI टेस्ट किसकी थ्योरी पे बेस्ड है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आंसर इज यंग. सो कार्ल यूंग की थ्योरी पे बेस्ड है MBTI टेस्ट. ऑलराइट. देन आइजेंक की पर्सनालिटी थ्योरी, MMPI, ठीक है. ये सारी चीजें आपको बेसिक इसमें कवर करनी है. ऑलराइट. देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव द साइकोलॉजिकल असेसमेंट. सो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग विच मीन्स ऑल द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. स्पीयरमैन थ्योरी, केटल थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी, गिलफर्ड थ्योरी, स्टर्नबर्ग थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, गोलमैन, पीटर सैलोवन, मेयर. राइट. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस टेस्टिंग की हिस्ट्री क्या है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड बीने, लुइस टर्मैन, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, रॉबर्ट यर्कीज का क्या कंट्रीब्यूशन था. हर ये चीज आपको पढ़नी है. रिलायबिलिटी टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है. Then social psychology, although it's not a part of CUET, but indirectly, directly questions पूछे जाते हैं. And if you are giving GATE examination, this is very important. If you are giving other examinations, just Christ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, right, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, NFSU, तो वहाँ पे ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. आप यहाँ पे क्या मिस नहीं कर सकते हो? एटीट्यूड्स. What are the types of attitudes? What are the theories behind attitude formation? Then ग्रुप प्रोसेस में आपका जो स्टेजेस होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन के, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एजॉर्मिंग, वो वाला पूरा प्रोसेस, ठीक है. इसके अलावा कंफॉर्मिटी, शेरिफ का कंसेप्ट. ऑलराइट. अदर देन दिस जो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट था, ठीक है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है. एशकेलाइन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है आपको. देन ओबीडियंस में मिलग्राम की स्टडी, ये सारी चीज आपको पढ़नी है. देन देयर इज अ कॉम्प्लायंस ऑल्सो, राइट. पर्सुएशन टेक्निक्स, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, देन लो बॉल टेक्निक, जस्ट नॉट ऑल टेक्निक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है. देन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज में बेसिकली आपको थेरेपीज के बारे में पढ़ना है. सो सम थेरेपीज विच यू कैन नॉट स्किप, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे, दैट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एरनबेक. साइकोडायनेमिक विच इज बेसिकली साइको एनालिसिस, फ्रॉइड की टेक्निक. देन ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर थेरेपी में आपका क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या PCT, CCT, ये सारी चीजें होती हैं. देन देयर इज ऑल्सो दिस REBT, ठीक है, REBT एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. ये दो थेरेपीज भी और आती हैं, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है. REBT वाज गिवन बाय एल्बर्ट इलिस, ठीक है, एंड
सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज गिवन बाय वोल्पे। तो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में यू हैव टू सिंपली बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, which is measures of central tendency, that is mean, median, mode. इन पे आपको ध्यान देना है। Then there is a calculation of Z score and T score, जिसको बेसिकली Z score कहते हैं। तो Z score कैसे निकालते हैं, T score कैसे निकालते हैं? They will be asking you questions on NPC calculation, right? This is the NPC graph. ऐसा होता है कुछ, right? They will give ask you कि यहाँ पे कितने परसेंट पॉपुलेशन लाई कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी परसेंट पॉपुलेशन लाई कर रही है। इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें किस तरह से प्रोग्रेस हो रही हैं एंड हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड मैनेज योर कंप्लीट प्रिपरेशन। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद ऑल द कंप्लीट गाइडेंस कि आप एकदम ब्लाइंडफोल्ड हो जाओ चीज़ों को लेके, एवरीथिंग जस्ट गिव इट ऑन टू आवरसेल्व्स, यू कैन जॉइन माय बैच महायोद्धा बैच, विच इज अ वन टाइम सोल्यूशन बैच। सारा कुछ आपको इसमें एक साथ मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे जो सेकेंड फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, विच इज फ्रॉम द मिड ऑफ द नवंबर, उसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच इटसेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।